عید کے بعد مارکیٹوں کے اوقات کار کیا ہوں گے یا پھر سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ حکومت نے سب کی بات کا مان رکھ لیا۔ لاک ڈاؤن کا مشورہ دینے والوں کی بھی مان لی گئی اور کاروبار کرنے والوں کی بھی مان لی گئی۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کا کہنا ہے حکومت نے ہفتے میں 4 دن بازار شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، باقی 3 روز مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کل اجلاس کے بعد جاری کیا جائے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، عید کے بعد مارکیٹوں کے اوقات کار کیا ہوں گے؟ کیا پھر سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ حکومت نے سب کی بات کا مان رکھ لیا ہے، لاک ڈاؤن کا مشورہ دینے والوں کی بھی مان لی گئی ہے، جبکہ کاروبار کرنے والوں کی بھی مان لی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کا کہنا ہے حکومت نے ہفتے میں 4 دن بازار شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، باقی 3 روز مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ ہفتے میں 4 دن شاپنگ مالز اور مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے تاجر تحفظات کا شکار ہیں۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا کہنا ہے پورا ہفتہ کاروبار کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ رپورٹ دیکھیں عمیر عصمت کی۔ صوبائی حکومت نے عید کے بعد مارکیٹیں کھولنے کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ مارکیٹیں اور شاپنگ مالز ہفتے میں 4 روز کھلیں گے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار بند رہیں گے۔ ادھر تاجر برادری نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا کہنا ہے حکومت ہفتے میں 7 روز کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ جون اور جولائی کی گرمی، 47 درجہ حرارت، لاک ڈاؤن تو خود بخود ہو چکا ہے، اور آپ کیوں لوگوں کا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو اچھا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ ایز اے تاجر برادری کی اپنا نمائندگی کرتے ہوئے، ایز اے چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 دن ہفتے کو کھولنے چاہیے۔ رانا سکندر اعظم نے کہا بازاروں کے اوقات کار کے معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں۔ فیصل آباد کی بڑی تاجر تنظیم 2 ہیں، 3 ہیں، آپ ان کو لوپ میں لیں، آپ شاہد رزاق سکہ کو لیں، آپ اسلم بھلی کو لیں، آپ ظفر سندھو کو لیں، پرویز کموکا کو لیں، آپ فیصل آباد چیمبر کو لوپ میں لیں، اور اسی طرح پنجاب کے دوسرے جو چیمبرز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھائیں، ساتھ بٹھا کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس طرح چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ صبح 9 سے 7 بجے تک دکان کھلنی چاہیے اور ہفتے میں 7 دن بزنس ہونا چاہیے۔ سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بھلی اور انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری چودھری محمود عالم جٹ نے بھی ہفتے میں 3 دن کاروبار بند رکھنے کی مخالفت کر دی۔ اب ہفتے میں پھر وہی 4 دن کاروبار ہوگا، جس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر پہلے ہی معاشی طور پر برباد ہو چکے ہیں۔ ہم ایس او پیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر طرح تیار ہیں، اور صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے کاروبار 6 دن کھلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تاجروں کا کہنا ہے کورونا کے باعث پہلے ہی کاروباری سرگرمیاں تعطل کا شکار رہی ہیں۔ تاجر طبقہ مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں عید کے بعد مارکیٹوں کے اوقات کار کا معاملہ، پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور بازار 4 دن کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، 3 دن لاک ڈاؤن رہے گا۔ فیصلے پر تاجر برادری نالا ہے اور نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ چنیوٹ میں ضلع صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صدر سرگودا روڈ مہر شاہد، صدر موبائل مارکیٹ مرزا تیمور احمد، جنرل سیکرٹری مندر روڈ کاشف شفیق، جنرل سیکرٹری فیصل آباد روڈ اعظم مغل سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کاروباری مراکز ہفتے میں صرف 1 دن بند رکھے جائیں، جبکہ ان کا وقت صبح 9 سے شام 7 بجے تک کیا جائے۔ اوقات کار جو ہیں وہ 7 بجے تک مناسب ایک ٹائم تھا، جس کے اوپر تاجر کافی حد تک متفق بھی تھے۔ 5 بجے کا ٹائم جو ہے نا وہ تاجروں کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ اور دوسرا یہ 3 چھٹیوں والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر تاجر برادری کے پاس پورے ہفتے میں صرف 32 گھنٹے کام کے لیے ہوتے ہیں، وہ بالکل ناکافی ہیں۔ حکومت کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ابھی 3 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد اب کچھ حالات ٹھیک ہوئے تھے، لیکن حکومت نے پھر سے یہ تلوار ہمارے اوپر لٹکا دی ہے۔ اس سے دیکھیں 32 گھنٹے بنتے ہیں ہفتے کے اندر صرف۔ حکومت کو ہمارا مطالبہ پرزور کہ یہ جو معاشی معاملہ ہے نا اس کو دیکھے، اور جو تاجر جیسے کہتے ہیں ان کے مطابق چلے، کیونکہ ان کو بہتر پتہ ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پہلے ٹائم یہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک، اور یہ ہمیں ایک جمعے کی چھٹی منظور ہے،
और उस पर हम मुतफिक हैं। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत नजरसानी करे। मैं हुकूमत पंजाब से बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने फैसलों पे नजरसानी करे। गर्मी के औकात हैं, असर की नमाज 5:30 बजे होती है, कम से कम 7 बजे तक होने चाहिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुतफिका मुतालबा है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से शॉपिंग मॉल्स बाजार हफ्ते में 4 दिन खोलने जबकि जुम्मा ता इतवार 3 दिन लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया है। 4 दिन औकात कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्याट। मुल्क में जारी मुआशी बहरान ने गला मंडी झंग के ताजरों को भी लपेट में ले लिया। गला मंडी में इजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। ये रिपोर्ट देखें। मुल्क भर में जारी माशी बहरान के बाइस ताजिर बिरादरी शदीद मुतासिर हुई है। इस बहरानी कैफियत ने गला मंडी के ताजरों को भी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस गला मंडी में अजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आड़तियों का कहना था कि गंदम खरीदारी पर पाबंदी से कारोबार ठप हो गया है। दालों चावलों का कारोबार भी ट्रांसपोर्ट मैसर न होने से मुतासिर होने लगा है। ये गंदम का सीज़न है और गंदम का काम बिल्कुल मंडी में ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हुई है और इस पाबंदी की वजह से आड़ती हजरात बिल्कुल फारिग बैठे हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि माशी परेशानी और बदहाली के बायस सफेद पोश आड़ती ईद की खुशियां भी नहीं मना सके। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत को मईशत मजबूत करने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। मेहरबानी करो, हमारे हालात पर रहम खाएं। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे हाल पर रहम करें। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से इजनास की नकलो हमल के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट से पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया को कोरोना के 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई। हालत बेहतर होने पर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के 12 मरीज डिस्चार्ज कर दिए हैं, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेर इलाज मरीजों की तादाद 59 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 43 कन्फर्म जबकि 16 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 6 अफराद को सीरियस हालत के पेश नज़र वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। ताहम 36 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने का खदशा। अलाइड अस्पताल का CCU2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया। मजीद वार्ड्स का फैसला सीनियर डॉक्टरों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। रिपोर्ट देखें अज़ादार हुसैन की। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने न्यूरोलॉजी वार्ड के बाद CCU2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 को आइसोलेशन में तब्दील कर दिया है। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि अस्पताल में 60 मरीज जेरे इलाज हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मरीज शामिल हैं। फैसलाबाद इंतजामिया के मुताबिक अब गायनी या ENT वार्ड भी मुख्तस करने जा रहे हैं, जहाँ मुश्तबा और कन्फर्म मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ का अमला भी शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अवामी इकट्ठ पर पाबंदी के बावजूद शादी करने वाला दूल्हा क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। बारात आई, निकाह हुआ तो फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दिया। दूल्हे मियाँ को सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटीन जाना पड़ा। रिपोर्ट देखे रमजान मिर्जा की। ये हैं हसीब, जिनकी 25 मई को रॉयल पाम मार्ग की ढोल ढमक्के के साथ बारात आई। निकाह हुआ, फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दी। उन्होंने हमें रिटर्न लिख के दिया कि आप लोगों की कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को आपको पुलिस वालों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंतजामिया के बंदों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी इजाज़त मिल चुकी है, हम कर रहे हैं इंतज़ाम सारा। तो अब जब हम 125 की हम गैदरिंग लेके भी बारात लेकर पहुँचे थे, साथ ही खाना वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं था हुआ। अभी हमें 15 मिनट हुए थे वहाँ हॉल में पहुँचे और उन्होंने कहा पुलिस वाले आ चुके हैं। दुल्हन तो दुल्हा के घर रुखसत हो गई, मगर दुल्हे राजा सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए। रुखसती यही हुई है कि दूल्हा उधर पहुंचा था दुल्हन को लेने, लेकिन चला उधर गया क्वारंटीन सेंटर में, ये रुखसती हुई। दुल्हे मियाँ कहते हैं कंवारों को नसीहत है कि लॉकडाउन के दौरान शादी ना करें। मालिकान आप लोगों को कहते भी है ना कि मसला कि हम लोग सब लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तो आप लोग उनकी बात पे एतबार ना करें। आप लोग
اس کو رہنے دیں. جب تک آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوئی تھا کہ ہالس کھل چکے ہیں تب تک آپ لوگ کچھ نہ کریں. تب تک آپ لوگ سادگی سے شادی کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ نے بڑی گیدرنگ کرنی ہے تو آپ ویٹ کریں. بارات کے روز ہی پکڑے جانے والے دلہا حسیب کے گھر جانے کی کوشش جاری ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کا حکومت سے وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کا مطالبہ. یہ رپورٹ دیکھیں. وائرس کے باعث دنیا بھر میں خوف کی فضا قائم ہے. کرغزستان کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ کو پاکستان کی حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کرغزستان میں مقیم پاکستانی طلبہ نے اپنے ویڈیو پیغامات میں حکومت سے وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کا مطالبہ کر دیا. ہاسٹل ہے اسی میں تقریباً 150-200 اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں پر منتھ. اس سے ایک سے $150, $120, $130 لے رہے ہیں. اگر اسی کا بھی سارے اسٹوڈنٹس پاکستان واپس چلے جائے تو اسی کا یہاں پہ جو ہے وہ بزنس وغیرہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دیتے اور فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. ہم کرغزستان بشکیک میں رہتے ہیں. ہماری خوراک کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور نہ ہی ہمیں ATM سے پیسے نکلوانے باہر جانے دیتے ہیں اور نہ ہی ہمیں شاپس پر ہمیں الاؤ کرتے ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث کرغزستان میں کرفیو لگنے سے راشن ختم ہو گیا ہے. ہاسٹلز میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو گئی ہیں، جبکہ گھر والے پیسے بھجوا بھی دیں تو بینک سے جا کر پیسے وصول نہیں کر سکتے. کو ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت ہے نہ فلیٹ سے. اور کوئی سامان لینے کے لیے باہر نکل بھی جاتا ہے فلیٹ سے تو جو یہاں کے لوکل پولیس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیتی ہے اور ان کو اچھے خاصا فائن کرتی ہے جس کی اور ان کو لاک اپ میں بھی ڈال دیتی ہے. اور ایک تو یہ بھی وجہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں نا کہ لوکل لوگ وہ اپنے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے اور کچھ سامان راشن وغیرہ خریدنے کے لیے وہ پولیس پکڑ لیتی ہے اور جرمانہ لائحہ کرتی ہے. 3000 سے 5000 سون تک میرے دوستوں کو جرمانہ ہوا ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو گیا اور خوراک کی بہت قلت ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ ایمبیسی کو متعدد درخواستیں کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. طلبہ نے پاکستان کی حکومت سے گھروں کو واپسی کے لیے ویڈیو پیغامات بھجوا دیے. یہاں پہ بہت سارے مسائل واقع ہیں جن میں سے کچھ کے اوپر میں نگاہ ڈلوانا چاہتا ہوں. یہاں پہ بینکس وغیرہ بند ہیں، ہمارے ATM کارڈ وغیرہ میں پیسے ہیں وہ ہم نہیں نکلوا سکتے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں سے کچھ ہمیں بتائیں گے. اپنے لوکلز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ فورنرز کو نہیں. جبکہ ہمارے ایک بھائی ہیں بشکیک میں، وہ پہلے گئے ہیں وہاں پہ ماسک لینے، انہوں نے فارمیسی والے نے اس کو ماسک نہیں دیا، جبکہ ایک یہاں ہفتے میں 4 دن شاپنگ مالز اور مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے تاجر تحفظات کا شکار ہیں. صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا کہنا ہے پورا ہفتہ کاروبار کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے. رپورٹ دیکھیں عمیر عصمت کی. صوبائی حکومت نے عید کے بعد مارکیٹیں کھولنے کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان کر دیا. مارکیٹیں اور شاپنگ مالز ہفتے میں 4 روز کھلیں گے جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار بند رہیں گے. ادھر تاجر برادری نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے. صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا کہنا ہے حکومت ہفتے میں 7 روز کاروبار کرنے کی اجازت دے. جون اور جولائی کی گرمی، 47 درجہ حرارت، لاک ڈاؤن تو خود بخود ہو چکا ہے اور آپ کیوں لوگوں کا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو اچھا فیصلہ نہیں سمجھتا. ایز اے تاجر برادری کی اپنا نمائندگی کرتے ہوئے، ایز اے چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 دن ہفتے کو کھولنے چاہیے. رانا سکندر اعظم نے کہا بازاروں کے اوقات کار کے معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں. فیصل آباد کی بڑی تاجر تنظیم 2 ہیں 3 ہیں، آپ ان کو لوپ میں لیں. آپ شاہد رزاق سکہ کو لیں، آپ اسلم بلی کو لیں، آپ ظفر سندھو کو لیں، پرویز کموکا کو لیں، آپ فیصل آباد چیمبر کو لوپ میں لیں اور اسی طرح پنجاب کے دوسرے جو چیمبرز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھائیں. ساتھ بٹھا کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس طرح چاہتے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ صبح 9 سے 7 بجے تک دکان کھلنی چاہیے اور ہفتے میں 7 دن بزنس ہونا چاہیے. سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بھلی اور انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری چودھری محمود عالم جٹ نے بھی ہفتے میں 3 دن کاروبار بند رکھنے کی مخالفت کر دی. اب ہفتے میں پھر وہی 4 دن کاروبار ہوگا جس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر پہلے ہی معاشی طور پر برباد ہو چکے ہیں. ہم SOPs کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر طرح تیار ہیں اور صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے کاروبار 6 دن کھولنے کی اجازت دینی چاہیے.
ताजरों का कहना है कोरोना के बाइस पहले ही कारोबारी सरगर्मियां तात्तुल का शिकार रही हैं। ताजर तबका मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। चिन्योट में ईद के बाद मार्केटों के औकातकार का मामला। पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने का फैसला कर लिया है। 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। फैसले पर ताजी बरादरी नाला है और नजरसानी की अपील की है। चिन्योट में ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी की ज़ेर सदारत ताजर रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में सदर सरगोदा रोड महर शाहिद, सदर मोबाइल मार्केट मिर्जा तैमूर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मंदिर रोड काशिफ शफीक, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद रोड आजम मुगल समेत दीगर ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि कारोबारी मराकज हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बंद रखे जाएं, जबकि उनका वक्त सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किया जाए। औकातकार जो हैं वो 7 बजे तक मुनासिब एक टाइम था, जिसके ऊपर ताजर काफ़ी हद तक मुत्तफिक भी थे। 5 बजे का टाइम जो है ना वो ताजरों के साथ बहुत ज़्यादती है। और दूसरा ये 3 छुट्टियों वाला जो इशू है, इसके ऊपर ताजर बिरादरी के पास पूरे हफ्ते में सिर्फ 32 घंटे काम के लिए होते हैं, वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अभी 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब कुछ हालात ठीक हुए थे, लेकिन हुकूमत ने फिर से ये तलवार हमारे ऊपर लटका दी है। इससे देखें 32 घंटे बनते हैं हफ्ते के अंदर सिर्फ। हुकूमत को हमारा मुतालबा पुरजोर कि जो मुआशी मामला है ना, इसको देखे और जो ताजर जैसे कहते हैं उनके मुताबिक चले, क्योंकि उनको बेहतर पता है वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो पहले टाइम ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और ये हमें एक जुमे की छुट्टी मंजूर है और उस पर हम मुतफिक हैं। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत नजरसानी करे। मैं हुकूमत पंजाब से बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने फैसलों पे नजरसानी करे। गर्मी के औकात हैं, असर की नमाज 5:30 बजे होती है, कम से कम 7 बजे तक होने चाहिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुतफिका मुतालबा है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से शॉपिंग मॉल्स बाजार हफ्ते में 4 दिन खोलने, जबकि जुम्मा ता इतवार 3 दिन लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया है। 4 दिन औकातकार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट। मुल्क में जारी मुआशी बहरान ने गला मंडी जंग के ताजरों को भी लपेट में ले लिया। गला मंडी में इजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। ये रिपोर्ट देखें। मुल्क भर में जारी माशी बहरान के बाइस ताजिर बिरादरी शदीद मुतासिर हुई है। इस बहरानी कैफियत ने गला मंडी के ताजरों को भी लपेट में ले लिया है, जिसके बाइस गला मंडी में अजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आड़तियों का कहना था कि गंदम खरीदारी पर पाबंदी से कारोबार ठप हो गया है। दालों चावलों का कारोबार भी ट्रांसपोर्ट मैसर न होने से मुतासिर होने लगा है। ये गंदम का सीज़न है और गंदम का काम बिल्कुल मंडी में ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हुई है और इस पाबंदी की वजह से आड़ती हजरात बिल्कुल फारिग बैठे हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि माशी परेशानी और बदहाली के बायस सफेद पोश आड़ती ईद की खुशियां भी नहीं मना सके। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत को मईशत मजबूत करने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। मेहरबानी करो, हमारे हालात पर रहम खाएं। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे हाल पर रहम करें। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से इजनास की नकलो हमल के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट से पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया को कोरोना के 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई। हालत बेहतर होने पर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के 12 मरीज डिस्चार्ज कर दिए हैं, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेर इलाज मरीजों की तादाद 59 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 43 कन्फर्म जबकि 16 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 6 अफराद को सीरियस हालत के पेश नज़र वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। ताहम 36 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने का खदशा। अलाइड अस्पताल का CCU2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया। मजीद वार्ड्स का फैसला सीनियर डॉक्टरों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। रिपोर्ट देखें अज़ादार हुसैन की।
फैसला आबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने न्यूरोलॉजी वार्ड के बाद CCU 2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 को आइसोलेशन में तब्दील कर दिया है। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि अस्पताल में 60 मरीज जेरे इलाज हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मरीज शामिल हैं। फैसला आबाद इंतजामिया के मुताबिक अब गायनी या ENT वार्ड भी मुख्तस करने जा रहे हैं, जहाँ मुश्तबा और कन्फर्म मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ का अमला भी शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दिल के अरमान आंसू में बह गए। अवामी इकट्ठ पर पाबंदी के बावजूद शादी करने वाला दूल्हा क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। बारात आई, निकाह हुआ तो फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दिया। दूल्हे मियाँ को सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटीन जाना पड़ा। रिपोर्ट देखे रमजान मिर्जा की। ये हैं हसीब, जिनकी 25 मई को रॉयल पाम मार्की ढोल ढमक्के के साथ बारात आई। निकाह हुआ, फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दी। उन्होंने हमें रिटर्न लिख के दिया कि आप लोगों की कोई मसला नहीं होगा, आपको पुलिस वालों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंतजामिया के बंदों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी इजाज़त मिल चुकी है, हम कर रहे हैं इंतज़ाम सारा। तो अब जब हम 125 की हम गैदरिंग लेके अभी बारात लेकर पहुँचे थे, साथ ही खाना वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं था हुआ। अभी हमें 15 मिनट हुए थे वहाँ हॉल में पहुँचे हुए, उन्होंने कहा पुलिस वाले आ चुके हैं। दुल्हन तो दुल्हा के घर रुखसत हो गई, मगर दुल्हे राजा सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए। रुखसती यही हुई है कि दूल्हा उधर पहुंचा था दुल्हन को लेने, लेकिन चला उधर गया क्वारंटीन सेंटर में, ये रुखसती हुई। दुल्हे मियाँ कहते हैं कंवारों को नसीहत है कि लॉकडाउन के दौरान शादी ना करें। मालिकान आप लोगों को कहते भी है ना कि मसला कि हम लोग सब लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तो आप लोग उनकी बात पे एतबार ना करें, आप लोग उसको रहने दें। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता कि हॉल्स खुल चुके हैं, तब तक आप लोग कुछ ना करें। तब तो आप लोग सादगी से शादी कर सकते हैं तो कर लें, अगर आपने बड़ी गैदरिंग करनी है तो आप वेट करें। बारात के रोज ही पकड़े जाने वाले दुल्हा हसीब के घर जाने की कोशिश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा का हुकूमत से वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात का मुतालबा। ये रिपोर्ट देखें। वायरस के बाइस दुनिया भर में खौफ की फिजा कायम है। किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जेरे तालीम तलबा को पाकिस्तान की हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा ने अपने वीडियो पैगामात में हुकूमत से वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात का मुतालबा कर दिया। हॉस्टल है, उसी में तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स रह रहे हैं पर मंथ, उससे एक से 150, 120, 130 डॉलर रो ले रहे हैं। अगर इसी का भी सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान वापस चले जाए तो इसी का यहाँ पे जो है वो बिजनेस वगैरह खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये लोग हमें जाने नहीं देते, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हम किर्गिस्तान बिश्केक में रहते हैं, हमारी खुराक का सारा सामान ख़त्म हो गया है और ना ही हमें ATM से पैसे निकलवाने बाहर जाने देते हैं और ना ही हमें शॉप्स पर हमें अलाउ करते हैं। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस किर्गिस्तान में कर्फ्यू लगने से राशन खत्म हो गया है। हॉस्टल्स में खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई हैं, जबकि घर वाले पैसे भिजवा भी दें तो बैंक से जाकर पैसे वसूल नहीं कर सकते। को हॉस्टल से निकलने की इजाज़त है ना फ्लैट से, और कोई सामान लेने के लिए बाहर निकल भी जाता है फ्लैट से, तो जो यहाँ के लोकल पुलिस है वो स्टूडेंट्स को पकड़ लेती है और उनको अच्छे खासा फाइन करती है, जिसकी और उनको लॉकअप में भी डाल देती है। और एक तो ये भी वजह है, और दूसरी ये है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं ना, के लोकल लोग, वो अपने लोगों को तरजीह देते हैं। जब हम बाहर जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए या और कुछ सामान राशन वगैरह खरीदने के लिए, तो वो पुलिस पकड़ लेती है और जुर्माना लैदा करती है। 3000 से 5000 सोम तक मेरे दोस्तों को जुर्माना हुआ है और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गया और खुराक की बहुत किल्लत है। तलबा का कहना है कि एम्बेसी को मुतअद्दिद दरख्वास्तें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तलबा ने पाकिस्तान की हुकूमत से घरों को वापसी के लिए वीडियो पैगामात भिजवा दिए। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल वाक़ हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर मैं निगाह डलवाना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक्स वगैरह बंद है, हमारे ATM कार्ड वगैरह में पैसे हैं वो हम नहीं निकलवा सकते, और भी बहुत से मसाइल हैं जिनमें से कुछ हमें बताएंगे। अपने लोकल्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जबकि फॉरेनर्स को नहीं। जबकि हमारे एक भाई हैं बिश्केक में, वो पहले गए हैं वहाँ पे मास्क लेने, उन्होंने फार्मेसी वाले ने उसको मास्क नहीं दिया, जबकि एक यहाँ